السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے پچھلے کئی درس میں آپ نے سماعت کیا کہ حضرت عبد المطلب کا اصلی نام شائبہ تھا۔ بڑے ہی نیک نفس اور عابد اور زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر کے جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے دھیان میں گوشہ نشینی رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکتا تھا اور حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو حضرت عبد المطلب سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ مکے والوں پر جب بھی کوئی مصیبت یا قحط پڑتا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور بارگاہ الہی میں ان کو وسیلہ بنا کر کے دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ اب آئیے ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سورہ فیل آپ پڑھتے ہیں، اسی واقعے کو لے کر کے قرآن پاک میں سورہ فیل نازل ہوئی۔ اچھا، اس کا سبب کیا تھا کہ وہ کیوں حملہ کر رہا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا یہ یمن کا بادشاہ تھا، تو یمن کی دارالحکومت یعنی انڈیا کا کیپٹل کیا ہے؟ دہلی ہے نا؟ تو یمن کا کیپٹل اس وقت کیا تھا؟ صنعا۔ ابھی بھی آج کل میرے خیال سے صنعا ہی ہے۔ تو اس نے اپنے کیپٹل میں، راجدھانی میں ایک بڑی شاندار عالیشان عمارت کی تعمیر کی اور پھر اس کے بعد وہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی بجائے یمن آ کر کے اس نے جو گرجا گھر بنایا، اس نے جو عمارت بنائی، اس کا حج کیا کرے۔ جب مکے والوں کو یہ معلوم ہوا تو ایک شخص بہت جل بھول کر کے غصے میں آ کر کے یمن چلا گیا۔ وہاں جا کر کے اس گرجا گھر میں اس نے ٹوائلٹ کیا اور پھر اس گندگی کو، اس ٹوائلٹ کو اس نے گرجا گھر میں پھیلا دیا پورا۔ تو جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی، مطلب ابراہا تک پہنچی، تو وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا اور وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل گیا، مطلب توڑنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے فوج کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، ہم مکے پر حملہ کریں گے اور خانہ کعبہ کو معاذاللہ توڑ دیں گے۔ اور وہ فوج کو لے کر کے یمن سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی وہ مکہ پہنچا ہی نہیں تھا، کچھ دور تھا، تو مکے والے لوگ جو ہے نا اپنے مویشی مطلب بکرا، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، جو بھی، ان سب کو مکے کے باہر چرانے کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، جو فوج کا اگلا دستہ تھا، اس نے وہ سارے اونٹ، سارے مویشی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے خیمے کے پاس باندھ دیا۔ انہوں نے جو ٹینٹ لگایا تھا، فوج کا جو ٹینٹ لگتا ہے، اس میں انہوں نے قید کر لیا مویشی کو۔ تو 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، کیا میرے اونٹ، میرے مویشی جو ہے وہ بادشاہ نے قید کر لیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابراہا کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے حضرت عبد المطلب کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو ابراہا نے دیکھا ایک بلند قامت
रौबदार, निहायत ही हसीन व जमील आदमी, जिसकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाह व जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरूब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उठ करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठा करके दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश, कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का मकसद क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाहियों ने पकड़ लिया है, आप उन सारे मवेशियों को हमारे हवाले कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये सुनकर के अब्राहा ने कहा, ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही बुलंद हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? अब्राहा ने कहा कि ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो खाने काबा तोड़ने आया हूँ माशाअल्लाह, आपने तो खाने काबा के ताल्लुक से कुछ नहीं कहा और आपको फिक्र हो रही है अपने ऊँट और बकरियों की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, काबातुल्ला मेरा घर नहीं है, लेकिन ऊँट बकरियां मेरी हैं। वो तो खुदा का घर है, काबा तो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचाएगा, मुझे काबे की जरा भी फिक्र नहीं। ये सुनकर के अब्राहम कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का सुन ले, मैं काबे को ढा करके उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्के वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए इस काबे को तोड़ देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जानिए और खुदा जानिए, खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर दिया, हुक्म दिया कि इनके तमाम जानवरों को वापस कर दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों बकरियों को साथ लेकर के आए, अपने घर चले आए और आकर के मक्के वालों में जो उनका जिसका जो ऊँट था, जिसकी जो बकरियां थी, दे दी। और उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मक्के वालों से कि तुम सब अपने मवेशी, अपने घर का सामान, सब कुछ लेकर के मक्के की हद से निकल के पहाड़ों में चले जाओ और पहाड़ों के गारों में छुप जाओ। तमाम मक्के के लोग अपने घर से सामान निकालते हैं, मवेशी अपने लेते हैं और सब के सब मक्का रातों रात खाली कर देते हैं और पहाड़ों में चले जाते हैं और गारों में छुप जाते हैं। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा पहुंचते हैं और खाने काबा का दरवाज़ा पकड़ के निहायत ही बेकरारी और गिरियावजारी रो करके अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगने लगते हैं कि ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और उन लोगों के मुकाबले में, यानी जो तेरा घर तोड़ने के लिए आए हैं, अब्राहा की फौज के मुकाबले में, ऐ अल्लाह अपने अतात गुजारों की, यानी हम लोगों के, हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके लोगों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर के ये भी पहाड़ की चोटी पर चले गए। अब सुबह हुई तो ये खुदा की कुदरत का जलवा देखने के लिए बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि अब्राहा की फौज हाथियों के लश्कर के साथ, अच्छा तो हाथियों का लश्कर लेकर के अब्राहा अपनी फौज को लेकर के चलता है। एक मुकाम पर आने के बाद समुद्र की जानिब से अबाबील चिड़ियाओं का झुंड आता है। छोटी सी चिड़िया होती है, बहुत छोटी सी, इतनी छोटी सी, जो समुद्र के पास से आती है। अब जब आती है उड़ के, पूरा झुंड उड़ के आता है तो चोंच में एक कंकड़ी, अब छोटी सी चिड़िया है तो उसको क्या वजन उठाएगी, चोंच में एक कंकड़ी, एक पैर में एक कंकड़ी, दूसरे पैर में एक कंकड़ी, मतलब एक चिड़िया
3 कंकड़ियों को लेकर के आती है हवा में उड़ते हुए। अब जब वो हवा में उड़ते हुए आती है तो अबरहा की फौज पर आकर के वहां से वो कंकड़ियों को छोड़ती है। तो एक एक कंकड़ी जब किसी फौजी के सर पर गिरती है तो हिंदी लफ्ज में कहूं तो वो भस्म हो जाता है, भूसा बन जाता है, ऊपर से लेकर के नीचे तक भूसा बन जाता है। यहाँ तक कि वो जो हाथी थे ना, हाथियों के ऊपर, या अगर आदमी हाथी के ऊपर बैठा है और वो कंकड़ी गिरी तो वो भूसा बन जाता है, सब राख भूसा हो जाता है। और इस तरह से अबाबील ने उस कंकड़ियों को फेंका और फेंकने के बाद वो पूरी की पूरी फौज जो है वो भूसा बन गई, राख बन गई। अबरहा और उसका पूरा लश्कर अल्लाह की गजब की मार में ऐसा मुबतला हुआ कि उसकी पूरी फौज खत्म हो गई, सब मारे गए, उनके जिस्म की बोटियां बन गई, बुक्के बन गए और वहाँ पर सब फैल गए, पूरा ख़त्म हो गए। और इसी वाक़ये को कुरान पाक में सूरह फील में बयान किया गया। तो सूरह फील में इस पूरे वाक़ये को बयान किया गया और इस तरह से अबरहा अपनी फ़ौज के साथ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये जब वाक़या होता है तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 55 दिन पहले वाक़या हुआ। उसके बाद वैसे तो पहले से ही कुरैश के लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनकी अक़ीदत और मोहब्बत और बढ़ जाती है। उसके बाद के वाक़यात हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि या इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में तमाम अंबिया व रसूल की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे दिलों में तमाम औलिया कराम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें खुलूस दिल के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।